Hello students, so welcome back to our YouTube channel. In this video, we are going to complete mechanical properties of fluids previous year question. So let's start. So in the last video, we have covered till the question number 20. Now let's move to the question number 21st. In this, it is given that there are three liquids of different density. First one density is rho 1, second density is rho 2, and third density is rho 3. It is given that they are having the same value of surface tension in the same height. Now we need to calculate about the angle. So we know that in a capillary, the liquid rises due to the surface tension maintained by the liquid and is given by the formula, that is, in a capillary, the height to which a capillary will rise is given by H is equals to 2t cos theta by r rho g. Okay, so from this we can clearly state that cos theta is directly proportional to rho, keeping the rest factor constant. Now we know that cos is a decreasing function. That means if we have used three values, that is rho 1 is greater than rho 2 than rho 3, then for the same we'll have cos theta 1 will be small, cos theta 2 then cos theta 3. Students, because cos theta is a decreasing function, that means अगर cos बड़ा है तो theta की value small होगी. So from this we can write it as theta 1, theta 2, theta 3. Because cos is a decreasing function, that means that if we have these values that कि rho की value बढ़ी है, if we have rho value is greater than some value, so you will have cos theta also greater than that value, cos theta also greater than that value, and the theta will obey the inverse function. Okay, because cos is a decreasing function. Now let's move to the next question. In this, it is given that two immiscible solid of densities. You are having a liquid in which you have two densities are put in a container. This is a container. आपने इसमें दो liquid की densities रखी. The height of each liquid is h. Each liquid की height है h. एक liquid की height है h. आपने यहाँ पे दो liquid रखे हैं. The height of each is this. The solid cylinder and density d is put in the cylinder. The cylinder floats with its axis vertical and length PL in the denser liquid. So students, it will be given as, now when we put the cylinder in this, we'll get that आपके पास दो लिक्विड्स हैं तो ये बन जाएगा NP, पहले वाले की डेंसिटी, और दूसरे वाले की डेंसिटी बन जाएगी दिस. आप क्वेश्चन में बोला है सिलेंडर फ्लोट्स विद एक्सिस वर्टिकल एंड हाइट इन द डेंसर मीडियम. नाउ इट इज क्लियरली स्टेटेड कि इसकी हाइट रो एल तो है डेंसर मीडियम में, यानी रो एल हाइट है यहाँ पे स्टूडेंट्स, पी एल, आई मीन टू से पी एल हाइट यहाँ पे है स्टूडेंट्स. तो रेस्ट में हाइट कितनी होगी? सिंपली एल माइनस पी एल. अगर पूरी कंटेनर की हाइट स्टूडेंट्स एल है तो इट इज ऑब्वियस कि अगर ऊपर वाले पार्ट में पीएल है तो बाकी पूरे पार्ट में होगी एल माइनस पीएल. ओके, नाउ सिंस द कंटेनर इज टोटली इमर्स्ड इन दिस, सो व्हाट वी आर राइटिंग, हमने क्या लिखा, दैट जितना ऊपर फोर्स लगे, दैट इज जितना ऊपर फोर्स लगेगा उतना ही नीचे लगेगा. दैट इज कंटेनर आराम से फ्लोट कर रहा है तो हमने बोला अब जितना डाउनवर्ड फोर्स है उतना ही अपवर्ड लगेगा, तभी स्टूडेंट्स एक ऑब्जेक्ट फ्लोट करती है. तो डाउनवर्ड क्या लग रहा है? यू से डाउनवर्ड तो वेट लगेगा, दैट इज वेट ऑफ द होल सिलेंडर. पूरी सिलेंडर का वेट इज इक्वल्स टू, स्टूडेंट्स ऊपर क्या फोर्स लगेगा? ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा स्टूडेंट, दो लिक्विड है, दोनों के पास कुछ ना कुछ विस्कस होगा, दोनों ही लिक्विड कुछ ना कुछ विस्कस फोर्स से सिलेंडर को ऊपर पुश करेंगे. सो यू विल हैव दोनों ही सिलेंडर पे ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा गिवन बाय V रो 1 इंटू जी प्लस V2 रो 2 इंटू जी. नाउ व्हाट इज रो 1? पहली वाली लिक्विड की डेंसिटी. व्हाट इज V1?
पहले वाले लिक्विड में कितनी डेंसिटी, कितना वॉल्यूम है बॉडी का. V2 is volume of the body in the liquid 2. Rho 2 is the density of liquid 2. Okay, so what is M? क्या मैं M को ऐसे लिख सकती हूँ as total volume of the body, total volume of the body into the density of the body. That will be simply mass of the body. Okay, into G is equals to. Now volume in the first liquid. So you'll say volume कितना हो जाएगा, simply pi r square gonna remain constant. Density कितनी होगी students? अगर मैं मान लो इस वाले की बात करूं तो यहाँ पे height कितनी होगी students? तो you'll say height will be simply PL. Height will be simply PL. And the density of this liquid, ऊपर वाले की density क्या है students? It is clearly given. That is N into rho plus इंटू जी प्लस दूसरा वाला है, यानी ये जो दूसरे वाले लिक्विड में कितना वॉल्यूम है स्टूडेंट्स. सो यू से दूसरे वाले में होगी पाई आर स्क्वायर. कितनी वॉल्यूम है स्टूडेंट्स? दिस पाई आर स्क्वायर इज द एरिया. कितना हाइट है स्टूडेंट्स? यू से एल माइनस पी एल. एल माइनस पी एल इंटू सिंपली द डेंसिटी ऑफ दिस आपने अभी देखी, दैट इज रो इंटू स्टूडेंट्स जी. ओके, तो यहाँ से जो कॉमन टर्म्स है उनको कैंसिल कर देंगे. पाई आर स्क्वायर इज कॉमन, pi r square is common. We'll just cut it off. G is common. Again, removing G from this section, we'll get L D, the density of the liquid, is equals to, ये बन जाएगा PL into N rho plus L minus PL into rho. तो यहाँ से स्टूडेंट्स व्हाट वी नीड टू फाइंड, वी नीड टू कैलकुलेट द डेंसिटी D. तो सिंपली D को एक तरफ लिखेंगे, L के टर्म्स को अगेन कैंसिल कर देंगे, तो इट विल बिकम D इज इक्वल्स टू P N रो प्लस L का टर्म यहाँ से कॉमन लेके आएंगे तो ये बन जाएगा 1 माइनस P इंटू रो. नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू स्टूडेंट्स, I am going to take rho common. When I'll take common rho, it will be Pn plus 1 minus P. Students, again we can write it as, we can write this to be as, इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ as just trying to rearrange so that ऑप्शन का फॉर्मेट मैच कर जाए. तो ऑप्शन के फॉर्मेट में रो कॉमन है एट द एंड, यस वी हैव ब्रॉट इट आउट. उसमें वन का टर्म पहले है तो देखो ध्यान से देखो, दिस टर्म्स विल गिव अस दिस वन. वन यहाँ से आ जाएगा, रेस्ट द टर्म लेफ्ट आर दिस एंड दिस. सो व्हाट आर वी गोइंग टू डू, we are going to simply add on these two terms, that will be minus rho minus p plus pn, that is plus pn. So you'll write d is equals to 1 plus p term will come out to be common, it will be n minus 1 into rho. I hope students it is clear to you. So the option to this question is option number 1. Now let's move to the next question. In this it is given एक cylindrical tube है, has a radius this, one end which have n fine holes. आपके पास एक cylindrical tube है, you have a cylinder tube. Okay, हमने सबसे पहले cylinder tube को ड्रॉ किया है जिसका रेडियस है r. Okay, each end of which has n fine holes. Okay, इसमें n fine holes है, आपके पास पूरे में छेद हैं, पूरे में holes हैं. Each of radius r, जिसका रेडियस है r. If the speed of liquid in tube is v, पूरे ट्यूब में स्पीड है v, then the speed of ejection through the holes, होल से किस स्पीड से इजेक्ट आउट होंगे. तो स्टूडेंट्स वी कैन सिंपली यूज इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, दैट इज जितना मास लेफ्ट से एंटर करेगा उतना ही तो मास राइट से इजेक्ट आउट करेगा. दैट इज वी सिंपली यूज इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी. E1 V1 जितना मास एंटर कर रहा है इज इक्वल्स टू E2 V2. नाउ व्हाट इज एरिया 1, दैट इज पहले वाले का कितना एरिया होगा, आप बोलोगे पहले वाले का एरिया हो जाएगा, पहले वाले का एरिया हो जाएगा स्टूडेंट्स, पहले वाले का एरिया हो जाएगा, यू राइट n इंटू पाई आर स्क्वायर, n इंटू पाई आर स्क्वायर, n इंटू पाई आर स्क्वायर. ये तो एक का एरिया हो गया. नाउ वी हैव n होल्स, तो इसको n से मल्टीप्लाई कर दिया, इंटू इंटू द वेलोसिटी विद विच इट इज प्रोजेक्टेड, that is
वी नीड टू कैलकुलेट कि यहाँ से कितनी जा रही है, होल से कितनी आ रही है, इज इक्वल्स टू द एरिया ऑफ द अदर एंड. एरिया ऑफ अदर एंड क्या हो जाएगा, एक पूरी पाइप है जिसका आर रेडियस है, तो यूं से एरिया ऑफ अदर एंड हो जाएगा पाई आर स्क्वायर इनटू यहाँ से कितनी वेलोसिटी से फ्लो कर रहा है, दैट इज गिवन टू यू, दैट इज वी. तो आप यहां से सिंपली v डैश की वैल्यू निकालो. v डैश इज द वेलोसिटी थ्रू द होल्स. होल्स पे से कितनी वेलोसिटी होगी, v डैश इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर इंटू v डिवाइडेड बाई पाई स्मॉल आर स्क्वायर इंटू n. तो आपने देखा स्टूडेंट्स, पाई से पाई कैंसिल, v डैश की वैल्यू हो जाएगी v इंटू आर स्क्वायर बाई एन आर स्क्वायर. I hope it is clear to you. So the correct option will be this third. Okay, now let's move to the next question. In the next question, it is given that water rises to a height h in a capillary tube if the length of the capillary tube above the surface of water is less than h. So students, इसमें एक बार देख के बेसिक दिमाग में आता है कि the water level will rise and it will overflow. But स्टूडेंट्स, ये नॉर्मल केस में होता है, नॉर्मल आपके पास अगर ग्लास वगैरह हो, लेकिन इफ यू हैव अ कैपिलरी तो इसमें ऐसा नहीं होता. वाटर लेवल जब भी, मान लो आपके पास एक हाइट है h, स्टूडेंट्स मान लो आपके पास एक हाइट है h, यहाँ तक पानी था, h हाइट तक था, और मान लीजिए आपका पानी यहाँ तक भरा हुआ था, ठीक है, पूरे इसमें कंटेनर में पानी था या कोई लिक्विड था. नाउ ड्यू टू एनी रीजन आपने इस कैपिलरी की हाइट को डिक्रीज कर दिया है, तो ऐसा नहीं होता कि द पानी विल ओवरफ्लो. ठीक है, पानी नेवर ओवरफ्लोज फ्रॉम अ कैपिलरी, क्योंकि व्हाट हैपेंस इज, अगर मान लो स्टूडेंट्स शुरू में h हाइट थी और r जो कैपिलरी बन रहा था, जो ऊपर जो लिक्विड था, दैट फॉर्म्स अ r रेडियस का, r रेडियस से पानी पूरे उसमें फैला हुआ था. तो अब क्या होगा, यहाँ पे हाइट अगर आप चेंज कर रहे हो तो यहाँ पे जो एरिया होगा, दैट इज यहाँ पे जितना बड़ा वो सरफेस के साथ वो लिक्विड रहने वाला था, वो इंक्रीज हो जाता है. सो यू से लिक्विड डज नॉट ओवरफ्लो इन दिस, liquid does not overflow in this. What actually happens is HR is equals to H dash R dash. H is the height of the previous, R is the radius, जो भी ऊपर पानी बनेगा उसका क्या एरिया होगा. What is H dash? H dash is अब न्यू हाइट कितनी है into what is R dash, अब जो नया कैपिलरी बन रहा है उसका कितना. तो यहां से आपने देखा एच आर इज इक्वल टू एच डैश आर डैश. तो लिक्विड ओवरफ्लो नहीं करता, ऑटोमेटिकली वो ये चीज मैनेज आउट कर लेते हैं. तो इन दिस द नेक्स्ट द क्वेश्चन इज and stays there without the overflow. So you will have this option. Now students, let's move to the next. एक विंड है, whichever speed this blows parallel to the roof of house, area of roof given है, pressure inside the house is 1 atm. The pressure, the force exerted by the wind on the roof and the direction of force will be. Okay, so you have this roof. In this it is given कि ऊपर से हवा बह रही है with the velocity given out to be 40 मीटर पर सेकेंड. आपको एरिया यहाँ का गिवन है स्टूडेंट्स 250 मीटर स्क्वायर. क्वेश्चन में गिवन है कि नीचे का जो प्रेशर है दैट इज 1 atm, नीचे का प्रेशर आपको 1 atm गिवन है. एंड स्टूडेंट्स यू नीड टू गेट कि फोर्स अप्लाइड कितना होगा. देखो, फोर्स होता है प्रेशर डिफरेंस इनटू एरिया. इफ एनी हाउ मैं दोनों के बीच में, यहाँ के बीच में भी प्रेशर पता लगा लूं, तो मैं कह सकती हूँ P2 minus P1 by area into area will give me the force. Students, what I need to find is simply pressure difference between two into the area. अब नीचे का प्रेशर पता है, ऊपर का प्रेशर का टर्म नॉट नॉन टू अस, तो हम क्या करने वाले हैं, ऊपर का प्रेशर निकालेंगे. लेट्स सी हाउ. सो स्टूडेंट्स, विल यूज सिंपली बर्नौलीज इक्वेशन. क्या यूज करेंगे, बर्नौलीज इक्वेशन का यूज करेंगे टू कैलकुलेट द प्रेशर एट अपर लेवल. We'll write pressure plus rho gh plus rho v square by 2 is a constant term. That is, जितना नीचे ये टर्म होगा इस पॉइंट पे, उतना ही ये टर्म होना चाहिए इस पॉइंट पे. ये आता है फ्रॉम द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. तो आप लिखोगे ऊपर प्रेशर कितना है, दैट इज P2 प्लस रो जी एच प्लस रो V1 का स्क्वायर बाय 2. नीचे प्रेशर कितना है, P atm प्लस
rho gh plus rho gh plus the velocity which is given out to be there, तो we'll say rho v2 square by 2. Now since अब हम ले रहे हैं बिल्कुल जैसे रूफ है, बिल्कुल एक्सट्रीम कॉर्नर्स पे दोनों पॉइंट्स का कंसीडर करें, तो व्हाट आई एम राइटिंग, तो दोनों की हाइट सेम होगी, दोनों का ही हाइट डिफरेंस सेम होगा, सो आई एम टेकिंग इट आउट टू 0. यानी मैं दोनों पॉइंट्स यहाँ पे कंसीडर कर रही हूँ, एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ हाइट डिफरेंस नहीं ले रहे, तो इट विल बी P2, that is the pressure which I need to calculate, P2 minus PATM is equals to simply rho V1 square by 2, क्योंकि नीचे रूफ के नीचे कोई वेलोसिटी नहीं है, कोई विंड की वेलोसिटी नहीं है, तो यू से P2 मतलब द प्रेशर चेंज इज सिंपली गिवन एज, जब आप इसको सॉल्व करोगे स्टूडेंट्स, रो की वैल्यू रखोगे, V की वैल्यू बोथ आर गिवन टू यू, यू विल गेट 962. तो यहां से आप सिंपली रो इसकी वैल्यू आ जाएगी 960 पास्कल, तो व्हेन यू विल पुट इन द फॉर्मूला फोर्स इज इक्वल्स टू प्रेशर इनटू द एरिया, सो यू विल गेट सिंपली 4.8 into 10 की पावर 5 न्यूटन. नाउ स्टूडेंट्स अब आपको देखना है कि ऊपर लगेगा या नीचे लगेगा स्टूडेंट्स, तो इस केस में क्या होगा, प्रेशर की जो वैल्यू है दैट इज कमिंग आउट टू बी, जब आप ये टर्म सॉल्व करोगे तो ये टर्म आ रही है पॉजिटिव, ये टर्म आ रही है मतलब दिस टर्म इज मोर बिगर, P2 ज्यादा बड़ा है, P1 छोटा है, दैट इज दिस टर्म इज कमिंग आउट टू बी पॉजिटिव, दिस इक्वेशन P2 minus PATM. तो यहाँ से आप देखोगे कि ऊपर प्रेशर ज्यादा है, तो जो फोर्स लगेगा दैट विल बी एक्टेड इन द अपवर्ड डायरेक्शन, यानी जो रूफ है इसको एकदम बाहर की तरफ फोर्स लगेगा, ये रूफ की जो छत एकदम बाहर की तरफ फ्लो करने की कोशिश करेगी, सो यू विल हैव द ऑप्शन टू बी थर्ड, यानी ये टर्म आपका पॉजिटिव आ रहा है. ओके ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 26. इन दिस इट इज गिवन कि n ड्रॉप्स हैं आपके पास, n छोटी 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 ड्रॉप्स हैं जिनका रेडियस है r, वो सारी क्लब अप हो रही है और बना रही है एक बड़ा रेडियस r. ओके स्टूडेंट्स, सो अब आपसे बोला हुआ है कि द सरफेस टेंशन, तो एनर्जी कितनी होगी स्टूडेंट्स, जब भी ऐसे कोलैप के क्वेश्चन आते हैं, कोलैप्स करती है बॉडीज इनटू दिस, वी नो दैट इनिशियल वॉल्यूम जितनी होगी उतनी ही फाइनल वॉल्यूम. इनिशियल वॉल्यूम कितनी होगी स्टूडेंट्स, तो आप बोलोगे n ड्रॉप है इनटू एक की वॉल्यूम कितनी है 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल्स टू फाइनल वॉल्यूम कितनी होगी, आप बोलोगे 4/3 पाई आर का क्यूब. इनिशियल n ड्रॉप्स कितनी वॉल्यूम है 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल्स टू फाइनल वॉल्यूम, तो यहां से आप देखोगे n की पावर 1/3 इंटू आर इज इक्वल्स टू कैपिटल आर, तो यहां से मैंने एक रिलेशन सब्स्टिट्यूट कर लिया कि दोनों ही वॉल्यूम्स तो बराबर होंगे. नाउ नेक्स्ट, अब मुझे पता लगाना है एनर्जी कितनी होगी, तो आपने बोला व्हाट विल बी द एनर्जी, एनर्जी इज गिवन आउट टू बी T इंटू डेल्टा ए. T इज द टेंशन एंड डेल्टा ए इज द चेंज इन एरिया, तो आप बोलोगे एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी सिंपली स्टूडेंट्स T इंटू एरिया 4πr² माइनस, ये तो बाद का एरिया, एरिया फाइनल माइनस इनिशियल एरिया क्या होगा, आप बोलोगे n ड्रॉप्स है इनटू n ड्रॉप्स है इनटू एक का एरिया कितना होगा, आप बोलोगे 4πr², तो पूरे का एरिया कितना हो जाएगा n इंटू 4πr², तो टोटल एनर्जी हो जाएगी T इंटू 4πr² माइनस n की जगह क्या मैं लिख सकती हूँ एज, n की जगह क्या हम लिख सकते हैं r क्यूब बाय r क्यूब, दिस इज आई गॉट फ्रॉम हेयर, यहां से मैंने यूज किया इंटू 4πr². जब स्टूडेंट्स यू विल टेक द टर्म कॉमन, तो इट विल बी t इंटू 4π इंटू r क्यूब इंटू 1/r माइनस 1/r. ओके स्टूडेंट्स, तो जब आप देखोगे दिस ऑप्शन इज दिस वन. नाउ वी नीड टू कैलकुलेट एनर्जी रिलीज होगी या अब्सॉर्ब होगी स्टूडेंट्स, तो आप एक बात बताओ, आर तो बड़ा होगा एज कंपेयर टू दिस, ऑब्वियसली यस, आर बड़ा है, तो 1/r तो डेफिनेटली छोटा होगा एज कंपेयर टू 1/r. जब आप रेसिप्रोकल करते हो तो साइन एक्चुअली में इन्वर्ट आउट हो जाते हैं, तो वी कैन क्लियरली स्टेट दैट दिस टर्म इज ग्रेटर. ये वाला जो टर्म है हमारे पास स्टूडेंट्स, ये टर्म बड़ा है, अगर ये टर्म बड़ा है हमारे पास तो डेफिनेटली दिस टर्म इज कमिंग आउट टू बी नेगेटिव. अगर ये टर्म इज कमिंग आउट टू बी नेगेटिव यानी इनिशियली एनर्जी ज्यादा थी, फाइनली एनर्जी कम है, तो आप देख सकते हो कि एनर्जी विल बी रिलीज्ड,
क्योंकि इनिशियली ज्यादा थी, फाइनली कम है, तो इनिशियली अगर ज्यादा है, इनिशियल तो फाइनल अगर कम है, तो दैट ऑल ओनली मीन्स कि आपकी ये एनर्जी रिलीज आउट हो। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप यू गाइस आर फॉलोइंग मी। द वेटेबिलिटी डिपेंड्स प्राइमरी ऑन, सो स्टूडेंट्स वेटेबिलिटी की एक लिक्विड, एक सरफेस एक लिक्विड को वेट करेगा या नहीं करेगा, दैट मेनली डिपेंड्स अपॉन द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। ओके, नेक एंड बॉटम आपके पास एक कंटेनर है, यू हैव अ कंटेनर जिसका नेक एंड बॉटम, नेक और बॉटम, नेक की आपके पास स्टूडेंट्स रेडियस दे रखी है 3 सेंटीमीटर, बॉटम की दे दी आपको 15 सेंटीमीटर। तो कोर की स्ट्रेस ऊपर से आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो 12 न्यूटन, तो फोर्स नीचे कितना आ जाएगा? सो स्टूडेंट्स वी आर गोइंग टू यूज द पास्कल लॉ। अब नाउ व्हाट इज पास्कल लॉ सेज कि आपने अगर एक कंटेनर में एक लिक्विड फैल है, तो जितना प्रेशर आप ऊपर वाले पॉइंट पे लगाओगे, तो सारा प्रेशर नीचे वाले पॉइंट तक अनअल्टर्ड फैल जाता है। तो P1 इज इक्वल्स टू P2, तो आपने बोला P1 इज इक्वल्स टू P2। P1 की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट्स? तो आप बोलोगे फोर्स पर यूनिट एरिया इज इक्वल्स टू P2 की वैल्यू कितनी होगी? फोर्स पर यूनिट एरिया। तो देख लीजिए स्टूडेंट्स, फोर्स की वैल्यू कितनी आएगी? फोर्स की वैल्यू हो जाएगी 12 बाय एरिया की वैल्यू हो जाएगी पाई इंटू आर स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। फोर्स F2 की वैल्यू कितनी होगी स्टूडेंट्स? तो दैट इज विच यू नीड टू कैलकुलेट, एरिया की वैल्यू होगी पाई इंटू 15 का स्क्वायर। जब आप इसे सॉल्व करोगे F2 की वैल्यू आएगी 25 इंटू 12। जब आप इसे सॉल्व करोगे, सो द आंसर विच इज गोइंग टू कम आउट इज, I think 300 will come in this. Okay, now let's move to the next question. Okay, in this question, in the YouTube question, देखिए स्टूडेंट्स, मोस्टली द कॉन्सेप्ट इज सेम, दैट इज एक ही कॉन्सेप्ट यूज होता है कि प्रेशर एट द अपर पॉइंट इज इक्वल टू द प्रेशर एट लोअर। यानी मैं क्या कह रही हूँ, देखो मैं ये कह रही हूँ कि जितना प्रेशर, अब हम क्या यूज कर रहे हैं कि जितना प्रेशर, एक कोई भी एक हाइट मान लो मैंने ये हाइट मान ली, ठीक है, तो जितना प्रेशर एट द पॉइंट 1 होगा स्टूडेंट्स, उतना ही प्रेशर एट द पॉइंट 2 होगा। जितना प्रेशर 1 पे, उतना ही प्रेशर क्या होगा स्टूडेंट्स? 2 पे। तो हमने सिंपली लिखा कि दोनों पॉइंट का हाइट सेम है, तो प्रेशर एट 1 इज इक्वल्स टू प्रेशर एट 2। प्रेशर एट 1 कितना होगा? तो आप बोलोगे प्रेशर एट 1 होगा रो ऑफ एक्स इंटू जी इंटू हाइट कितना है? से 10 इज इक्वल्स टू प्रेशर एट 2 पॉइंट्स क्या होगा? एक तो होगा स्टूडेंट्स वाई लिक्विड की वजह से, तो मैंने लिखा डेंसिटी ऑफ वाई इंटू जी इंटू हाइट कितना है? 8 प्लस दूसरा किससे होगा? दूसरा होगा स्टूडेंट्स इस ब्लैक वाले से, तो यू से डेंसिटी ऑफ द ब्लैक पार्ट इंटू जी इंटू 2, दैट इज कितने हाइट तक था वो स्टूडेंट्स? 2 हाइट तक था। तो रो ऑफ डेंसिटी ऑफ एक्स इज गिवन आउट टू बी 3.36 इंटू जी इंटू हाइट दैट इज 10 इज इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ वाई कितना होगा स्टूडेंट्स? डेंसिटी ऑफ वाई आपको पता लगाना है, इंटू जी इंटू 8 प्लस डेंसिटी ऑफ द ब्लैक लिक्विड, जो भी ब्लैक दे रखा है, दैट इज बेसिकली मरकरी। क्वेश्चन में दे रखा है इट इज मरकरी, वी नो दैट मरकरी की डेंसिटी स्टूडेंट्स आप याद भी रख सकते हो 13.6 इंटू जी इंटू 2। अब नाउ वी हैव वन अननोन टर्म और बाकी सारे हमारे पास नोन टर्म्स है। एक अननोन है, तो आप इसे सॉल्व करोगे, यू विल गेट द वैल्यू टू बी, जब आप इसको सॉल्व करोगे सिंपली रो वाई की वैल्यू हो जाएगी 0.8। ओके, एक ही अननोन है, बाकी सारे नोन है, तो इट इज जस्ट सिंपली द कैलकुलेशन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वुडन बॉल है जिसकी आपको डेंसिटीज गिवन है, और आपसे बोला हुआ है कि एक वुडन बॉल ऑफ डेंसिटी इज इमर्स्ड इन वाटर। पहले वो इमर्स थी, फिर एकदम उसे छोड़ते हैं तो वो ऊपर जाती है। जैसे ये हमारे पास एक लिक्विड था, यहाँ पे एक डेंसिटी थी। अब ये जो ये लिक्विड है इसको हम छोड़ देते हैं, तो जैसे ही छोड़ते हैं तो हम देखते हैं कि इसके ऊपर ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा, द बाइंसी फोर्स। बाइंसी फोर्स की वजह से ऊपर जाएगा, ऊपर एक एक्सेलरेशन मिलेगा। अब ये जो एक्सेलरेशन मिला हुआ है, इसी से ये बॉल यहाँ तक आएगी, और इसी के पास बाद तब भी एक्सेलरेशन रह जाएगा, जिसकी वजह से और ऊपर जाएगी और ये यहाँ तक हिट करेगी। ओके स्टूडेंट्स, तो पहले मैं पता लगाना चाह रही हूँ
कि फोर्स कितना लग रहा है बॉल पे जिसकी वजह से वो ऊपर हिट आउट करे। ओके, तो हमने देखा फोर्स ऑन द बॉल एट दिस कंडीशन। अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम नीचे वाली कंडीशन, दैट इज, अभी मैं ये वाली कंडीशन ले रही हूँ बात पे। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए अब इस पे कितना फोर्स लग रहा है, आप बोलोगे एक तो नीचे की तरफ लगेगा mg और एक ऊपर की तरफ लग रहा है F बाई सी फोर्स। ओके, तो मैंने कैलकुलेट किया टोटल फोर्स कितना लग रहा है। आपने बोला जितना जितना इसका ये होगा, दैट इज ऊपर की तरफ फोर्स ज्यादा लगेगा, तो मैंने बोला बाइंसी फोर्स माइनस द mg। ओके स्टूडेंट्स, तो बाइंसी फोर्स कितना है, सो इनसे बाइंसी फोर्स कैन बी गिवन आउट टू बी v डी जी। v क्या है, वॉल्यूम, पूरी वॉल्यूम लिक्विड में ही है तो v लिखा। d क्या होगा स्टूडेंट्स, लिक्विड की डेंसिटी क्या है, ठीक है, इंटू g, माइनस यहाँ पे क्या होगा, पूरी बॉल का वॉल्यूम इंटू द डेंसिटी ऑफ द बॉल दैट इज डी जी। तो यहाँ से मैंने देखा एक्सेलरेशन जो लगेगा स्टूडेंट्स दैट इज v डी जी माइनस v डी जी डिवाइडेड बाय मास, ये तो फोर्स की वैल्यू है, तो एक्सेलरेशन हो जाएगा सिंपली मास। मास कितना होगा, वॉल्यूम इनटू द डेंसिटी ऑफ द बॉल। तो मैंने देखा ये जो बॉल है उस पे इतना ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन लगा है। ओके, अब एक बात देखो स्टूडेंट्स, जब ये बॉल यहां से यहां तक आएगी तो इसके पास वेलोसिटी कितनी होगी, तो आप बोलोगे v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2ah, दैट इज 2ah कितने हाइट तक आई, तो आपने बोला इनिशियली जीरो वेलोसिटी थी, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू e, एक्सेलरेशन कितनी लग रही है स्टूडेंट्स, जो अभी हमने कैलकुलेट करी, इंटू h हाइट तक ही ऊपर जा रही है। तो हमने देखा वेलोसिटी जब ये जस्ट ऊपर आती है तो इट इज गिवन बाय v इज इक्वल्स टू रूट 2ah। ओके, अब ये केस हो चुका है कि स्टूडेंट्स यहां तक ऊपर तक बॉल आ चुकी है, कंटेनर के ऊपर एकदम आ चुकी है, और अब इसके पास वेलोसिटी है 2ah। मुझे पता लगाना है कितनी दूरी तक जाती है। अगेन आई एम यूजिंग v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2ah डैश, कि कितनी दूरी तक जाएगी, मान लो दैट इज h डैश। जब ये बॉल ऊपर जाती है तो द फाइनल वेलोसिटी क्या होगी बॉल की, आप बोलोगे जीरो। फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी स्टूडेंट्स, बॉल की जीरो, तो v की वैल्यू हो जाएगी जीरो माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 इंटू एक्सेलरेशन अभी हमें पता था, अभी हमने निकाली है, इंटू किस हाइट तक जाएगी, h डैश की वैल्यू आपको निकालनी है, दैट इज यू स्क्वायर बाय 2a। तो स्टूडेंट्स यहां से आप देखोगे h डैश जिस हाइट तक बॉल अब और ऊपर जाएगी, यू डैश इज द वेलोसिटी जिस वेलोसिटी से आपने यहां पे प्रोजेक्ट किया, जो अभी हमने निकाली है, दैट इज 2ah डिवाइडेड बाय सिंपली 2 इंटू 2 इंटू यहाँ पे आएगी स्टूडेंट्स किस वेलो, क्या कितनी एक्सेलरेशन मिल रही थी इसे ऊपर जाते वक्त, सिर्फ एक एक्सेलरेशन है दैट इज जी, क्योंकि अब बाइंड से लिक्विड तो है नहीं जो लिक्विड वाली एक्सेलरेशन लगेगी। अभी पूरी बॉल ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है तो ई की फोर्स है जो इसे अपोज कर रही है, दैट इज जी। तो आपने देखा 2 से 2 कैंसिल, यहाँ से आ जाएगा एच डैश की वैल्यू आ जाएगी सिंपली, आप लिखोगे ए की वैल्यू को जब यहाँ पे सब्सटीट्यूट करोगे तो यू विल गेट द वैल्यू टू बी दिस। So the answer is this. That is option number second. Now let's move to the next question. एक piece है which weighs this in air, in water and liquid. Relative density calculate करनी है students. So it is very clear. It is very simple question. It is given हवा में इतना वजन है, यानी can I write mg is equals to 120. Okay, that is can be written as volume of the liquid, volume of the solid into density of solid into g. Now what will be the वेट इन द वाटर, वेट इन द वाटर कितना होगा स्टूडेंट्स, तो मैंने लिखा अपेरेंट वेट इज इक्वल्स टू द ट्रू वेट माइनस द बायंसी। अब क्वेश्चन में दे रखा है कि 80 है वाटर में, तो मैंने लिखा 80 वाटर में, असल वजन कितना है 120 माइनस बायंसी कितना पता लगा है, मैंने बोला बायंसी की वैल्यू आ रही है 40, कितना हो जाएगा वॉल्यूम इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर किसमें वजन है इनटू जी। पहली क्वेश्चन आ गई, ठीक है। दूसरी क्वेश्चन में बोला हुआ है अपेरेंट वेट है बेटा 60 ग्राम इन लिक्विड, तो इट विल बी वेट माइनस एफ बाइन सी। अपेरेंट वेट कितना है स्टूडेंट्स, इट इज 60 इज इक्वल्स टू ट्रू वेट कितना है 120 माइनस बाइन सी कितना लगेगा एफ बाइन सी, तो जगह माइनस 60 इज इक्वल्स टू माइनस एफ बाइन सी।
अगेन विल हैव 60 बाइंसी लग रहा है, तो देखा टोटल वॉल्यूम इनटू द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इनटू जी इज गिवन आउट टू बी 60. Okay, students. So now we have got this. Now it is asked relative density of solid to that and that of liquid. Relative density होता है students. That is density of the solid divided by density of water. So we need this term. तो क्या अगर मैं this equation first को equation second से divide कर दूं, तो क्या we will get the same thing. जब आप divide करोगे, you will get the value to be 3/2. Okay. And next, so it will come out to be 3, and when you will divide the when you will get the density of relative density of liquid, that is liquid divided by the density of water, you will get liquid की कितनी density, यानी this third equation divided by second. इन दोनों terms को हम divide कर देंगे तो it will become 60/40, that is 3/2. So students, the correct answer is 3/2. Now let's move to the next question. In this question it is given एक सॉलिड स्फीयर है. अगेन वी हैव टू यूज द सेम कॉन्सेप्ट. एक सॉलिड स्फीयर है, एक लिक्विड है स्टूडेंट्स, जिसका पहला है रो 1, दूसरा है रो 2, और आपके पास एक सॉलिड इसके अंदर इमर्स्ड आउट है. अब क्वेश्चन में बोला हुआ है ऊपर वाले का डेंसिटी रो 1, नीचे वाले का रो 2, तो रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ पार्ट ऑफ स्फीयर इन अपर एंड लोअर पार्ट. ओके स्टूडेंट्स, तो हमने ऐसे टाइप के क्वेश्चन को एक ही तरीका होता है डील करने का, दैट इज जितना नीचे फोर्स लग रहा है mg इज इक्वल्स टू ऊपर कितना फोर्स लग रहा है. ऊपर फोर्स लगेगा बायंसी, इस केस में लगेगा 2 बायंसी फोर्स लगेंगे. 2 बायंसी फोर्स लगेंगे, दैट इज एक तो लिक्विड 1 लगाएगा और एक स्टूडेंट लगाएगा लिक्विड सेकेंड. सो यू से in this question you will have टोटल वेट टोटल फोर्स कितना लग रहा है डाउन इज इक्वल्स टू कितना फोर्स लग रहा है ऊपर. डाउन कितना लगेगा स्टूडेंट्स, यू विल से mg, या यू कह सकते हैं वॉल्यूम ऑफ द पूरा लिक्विड इनटू डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इनटू g इज इक्वल्स टू. अब बाइंग सी फोर्स लगेंगे, 2 लगेंगे. पहला मान लिया मैंने कि वॉल्यूम ऊपर वाले में स्टूडेंट्स v1 वॉल्यूम, तो मैंने लिखा वॉल्यूम इनसाइड द 1 इनटू सिंपली द डेंसिटी ऑफ 1 इनटू g प्लस. अब नीचे वाला लिक्विड भी तो ऊपर की तरफ बायंसी फोर्स लगाएगा, दैट विल बी वॉल्यूम 2 इनटू रो 2 इनटू जी. नाउ स्टूडेंट्स, ऐसे लिख के फायदा नहीं है, वी कैन राइट इट एज, क्या मैं इसी इक्वेशन को देखो, इसी क्वेश्चन को सिंपल करने में 2-3 अननोन टर्म्स की जगह देखो स्टूडेंट्स, मैं इसको क्या सिंपली ऐसे नहीं लिख सकती कि वॉल्यूम इन 2 कैन बी रिटन एज टोटल वॉल्यूम माइनस वॉल्यूम इन 1 इंटू रो 2 जी. ऑब्वियसली बात है, टोटल वॉल्यूम है v, अगर नीचे वाले लिक्विड में v1 है तो ऊपर वाले में तो v माइनस v1 ही होगा. रेस्ट द टर्म इज सेम, v सिग्मा g. सो स्टूडेंट्स, यहां से हमने देखा इट कैन बी रिटन एज बाकी जो भी टर्म्स है आप इसको कैंसिल आउट कर सकते हो, तो ये बन जाएगा सिंपली g g g गेट कैंसिल, v इंटू सिग्मा इज इक्वल्स टू v1 रो 1 प्लस v माइनस v1 इंटू द रो 2. ओके, अब मैं क्या कर रही हूँ, v वाले सारे टर्म्स को एक तरफ लेके आ रही हूँ, दैट इज v सिग्मा, राइट से आएगा तो ये बन जाएगा v माइनस रो 2 इज इक्वल्स टू v1 वाले सारे टर्म एक तरफ, रो 1 माइनस रो 2. जब आप इसे देखोगे तो ये बन जाएगा v अपर, यानी वॉल्यूम इन 1 की वैल्यू आ रही है स्टूडेंट्स रो माइनस रो 2 डिवाइडेड बाय रो 1 माइनस. ओके, मैंने पता लगा लिया ऊपर वाले लिक्विड में कितना वॉल्यूम. सिमिलरली स्टूडेंट्स, अब एक बात बताओ, क्या अगर मैं इसी क्वेश्चन में ऐसे कर दूं, मुझे पता लगाना है वॉल्यूम इन सेकेंड लिक्विड v2, तो ये वाली टर्म को अगर मैं चेंज कर दूं, दैट इज ये वाली टर्म को चेंज कर दूं और ये वाली टर्म को एज इट इज रहने दूं, जैसे आपने अभी इसको चेंज किया है, अब नेक्स्ट केस में आप इसको चेंज करोगे तो यहां से v2 की वैल्यू ऑटोमेटिकली आ जाएगी स्टूडेंट्स. या मैं सिमिलरली करके लिख सकती हूँ, दैट विल कम आउट टू बी रो 1 माइनस रो 2 डिवाइडेड बाय रो माइनस रो 1. तो आप देखोगे दोनों के वॉल्यूम का रेशियो चाहिए, v1 बाय v2 इज इक्वल्स टू विल गेट आउट टू बी रो 2 माइनस रो 1 बाय रो माइनस रो 1. So students, the correct answer to this is this question. Okay students, I hope I am clear to you.
Now let's move to the next question. A vessel density over the mercury homogeneous pair floats in this liquid and the other half in oil. The density will. स्टूडेंट्स बिल्कुल सिमिलर नोट पे क्वेश्चन है, दैट इज जैसा आपने अभी ऊपर किया था सिमिलर नोट पे जैसा हमने पिछले वाला क्वेश्चन किया है. अगेन इसमें आपको दो ऊपर ऑयल है नीचे मरकरी है. ठीक है, आपके पास एक बॉडी है जो इन दोनों में इमर्स्ड आउट है. पहले वाले की डेंसिटी है 0.8, दूसरे वाले की डेंसिटी है 13.6. दोनों में इमर्स्ड आउट है तो हमने बोला जितना नीचे फोर्स लग रहा है एम जी इक्वल्स टू उतना ही ऊपर लगेगा एफ वी वन प्लस एफ वी टू. सिमिलर स्टूडेंट्स जैसा भी किया है सेम क्वेश्चन. वी सिग्मा इज इक्वल्स टू वी वॉल्यूम इन फर्स्ट इंटू डेंसिटी ऑफ फर्स्ट प्लस वॉल्यूम ऑफ सेकेंड इंटू डेंसिटी ऑफ सेकेंड. क्वेश्चन में दे रखा है कि वी डेंसिटी ऑफ मटेरियल पूछा हुआ है यानी सिग्मा आपसे पूछा हुआ है. बोला हुआ है आधा ऊपर है आधा नीचे है तो मैंने सिंपली वी बाई टू का टर्म यूज कर दिया है. तो आप देखोगे डेंसिटी की वैल्यू आ रही है रो वन प्लस रो टू डिवाइडेड बाई टू. डेंसिटी ऑफ लिक्विड की वैल्यू आ रही है स्टूडेंट 7 पॉइंट. ओके स्टूडेंट्स, so in this video we have completed many previous year question and the rest previous year questions will be covered in the next video. So till then, stay connected. Thank you.